Good morning, students. So let us begin our IT class today. So we have already seen first three sessions of our unit number two, and in the last session that we went through was related to fundamentals of computer, under which we saw what primary memory is, what secondary memory is, what is RAM, what is ROM, what is input unit, what is output unit, what is control unit, uh, which things are known as the receptionist of a computer, which things are known as the accountants of a computer. So those were some things that we already went through in our previous class. And one thing more we saw, which are the different ports that can be used in a computer. CPU के पीछे कौन कौन से अलग अलग ports होते हैं, what all devices that can be connected to all those different ports. So those were the things that we have seen in our session number 3. And I would like to say that the complete sessions that we are right now going through are all we can say are all theoretical subjects, are all theoretical topics. So this is the only way that we can use it to understand, है ना? Because there is some theory which is included everywhere. So the way that I can use to explain you the theory is that I can show you the book, the PDF of the book, and I will be explaining you what all things are given in the book. And if you think that if things are not clear to you, so you can directly ask me on my number, either on my number, or you can comment in the comment section of this particular video also. All right. Because you may feel like you are not understanding something, so feel free to talk to me, feel free to ask me the doubts. All right. If you would be doing so, I don't think you would be facing any problem related to IT. ऑल राइट. सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें नहीं हैं. यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी वो आपको ज़रूर से समझ में आएंगी, और आप लोग बस इन वीडियोस को देखते रहें, इन वीडियोस को समझते रहें. आप लोगों को बोला है कि आपको पीडीएफ्स पढ़ना है एक बार, सो यू हैव टू रीड इट, है ना. अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इस आईटी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आने वाली है. मैं अभी आप लोगों को ये वीडियोस बना के सिंपली ग्रुप पे डाल देता हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, बस इतना ही बोलकर मैं छोड़ देता हूँ. मेरा इसीलिए मैं इतना ही बोल के इसलिए छोड़ देता हूँ बिकॉज आई नो दैट ऑल द सेशंस दैट आर गिवन ओवर हियर आर व्हाट, they are all theoretical subjects. If you would be reading it once, you would understand what all things are covered in these sessions. But if still you think that things are not clear, so you can ask me. You don't feel that asking would be not nice. You have to ask if any doubt arises in your mind. All right. कुछ भी डाउट हो तो आप लोगों को पूछना ही है. ऑल राइट. सो ये चीज़ें क्लियर करने के बाद अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो अगला सेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एक काफ़ी इजी सा चैप्टर होगा, चाहे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. तो लैपटॉप होता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. तो ये सारे क्या है, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं. तो इनके बारे में ही हमको इस सेशन में बताया होगा, तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. एक मिनट. ओके. सो session number 4, types of computers. All right, let us see what all things are given inside the first paragraph. Consider a situation where you want to buy a television. There are many brands and models available in the market. You need to make a decision based on the features that you want and the price of the product. Similarly, there are different types of personal computers available in the market. They differ on basis of features, price, size and speed. In addition, these factors affect द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर. आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू, एक सिचुएशन के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि आप जैसे कि कभी टीवीज़ या कुछ ख़रीदने जाते हैं तो आप लोग बहुत सोचते हैं कि कौन सी कंपनी का ख़रीदें,
कितना बड़ा टीवी खरीदें, किस टेक्नोलॉजी का खरीदें, कौन सा मॉडल खरीदें, है ना। तो ये जो आप ये पूरा डिसीजन मेकिंग करते हो एक टीवी खरीदने के लिए, वैसा ही जो कंप्यूटर्स का आप कभी खरीदोगे तो आप ये देखोगे कि मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, है ना। जैसे आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसको मैं लेकर इधर उधर ले जा सकूं, जो मुझे कैरी करने में आसान हो, सो द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर इज़ लैपटॉप। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर के लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए दैट आई वुड बी यूजिंग एट होम, आई वोंट बी टेकिंग इट एनीवेयर, आई डोंट बी कैरिंग इट along with you, so the best option that you can opt for is what is a desktop computer, है ना। And if you want some more portable devices that can be carried easily, so you can opt for some PDA devices, means handheld devices. So those are also small devices, जैसे कि स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन कहीं ना कहीं उन हैंड हेल्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब इन अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ क्या होगा, इन अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ ये होगा, इन अलग अलग कंप्यूटर्स की अलग अलग प्राइसिंग होगी, ऑलराइट। अलग अलग कंप्यूटर्स की अलग अलग प्राइसिंग होगी, अलग अलग कंप्यूटर्स के अलग अलग फीचर्स होंगे, है ना। और इन फीचर्स के ऊपर ही सब डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, ऑलराइट। तो जनरली सीधी सी बात है, फीचर्स जितने ज़्यादा होंगे, परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा होगी, उतनी हाई प्राइस का वो प्रोडक्ट मिलने वाला है, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बेस्ड होता है कि कंप्यूटर्स किन कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, ऑलराइट। आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए, आफ्टर यू बाय टेलीविजन यू नीड टू चूज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैनल्स दैट आर अवेलेबल। दीज चैनल्स मे ऑफर entertainment, sports or news. You can choose to view a channel based on a preference. In the same way, after you start using a computer, there are different programs available that help you perform different tasks. You can use word processor, create documents or spreadsheet to perform mathematical calculations and other different सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पर देखिए, आप एक बार टीवीज़ तो परचेज कर लेते हैं, टीवीज़ परचेज करने के बाद क्या होता है, अब आप लोगों को कौन सा चैनल देखना है, एंटरटेनमेंट चैनल देखना है, न्यूज़ चैनल देखना है, म्यूज़िक चैनल देखना है, तो वो अब चैनल्स ऑप्ट करने पड़ते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर्स में भी ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। कंप्यूटर तो आपने परचेज कर लिया, वट एवर इट मे बी। अब कंप्यूटर्स को परचेज करने के बाद आपको उसमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है। अब अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होंगे जो इस कंप्यूटर में भी होंगे, जिनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने बोला ना, चैनल्स का यूज़ करके आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको टेलीविज़न पे पूरा कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप उन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आपकी जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको कुछ टाइप करना है डॉक्यूमेंट, तो आप लोग MS वर्ड का यूज़ करोगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको कोई PPT बनानी है, स्लाइड शो बनाना है, स्लाइड्स बनानी है, तो आप लोग पावर पॉइंट का यूज़ करोगे, है ना। तो देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स दैट आर जनरली यूज, देर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर जनरली यूज्ड in a particular computer based on your preferences, what all things you need to do, all right। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर बस एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि जैसे कि टीवी परचेस करते हो वैसे ही कंप्यूटर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। जैसे कि टीवी में चैनल्स देखते हो, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे अलग अलग कामों को करने के लिए, ऑलराइट। अब मार्केट में आज के समय में अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, पर जो सबसे कॉमन टाइप का कंप्यूटर है जो अवेलेबल है वो कौन सा है, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कि लोग, अपन जैसे लोग जो हैं जिनको घर के लिए ख़रीदना है, वो लोग जनरली क्या खरीदते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स खरीदते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स खरीदते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये एक समय पर एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है पर्सनल, पर्सनल मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के यूज़ के लिए इसको बनाया गया है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेलिवेंट नॉलेज में जो थर्ड लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर यूज़ बाय वन पर्सन एट अ टाइम। एक समय पर सिर्फ एक ही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वन पर्सन एट अ टाइम। अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन अ वर्क प्लेस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, manage business records and communicate with
अदर्स, है ना। एक जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, कुछ बिजनेस रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए किया जा सकता है। आपको अगर किन्हीं लोगों से कम्युनिकेट करना है तो इंटरनेट का यूज़ करके या आप चैट कर सकते हो लोगों से, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग टास्क हैं जो एक पर्सनल कंप्यूटर कर सकता है। और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो स्कूल्स में यूज़ हो सकता है पढ़ाई करने के लिए, रिसर्चेस के लिए यूज़ हो सकता है इंटरनेट, और कुछ असाइनमेंट्स अगर हैं तो उन असाइनमेंट्स के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रह सकता है एक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों से किन किन लोगों के लिए कौन सा कंप्यूटर डिज़ाइन किया हुआ है ना। और इन कंप्यूटर्स को कहाँ पर कैसे किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ पर्सनल कंप्यूटर टू प्ले गेम्स, व्यू वीडियोस एंड लिसन टू म्यूज़िक। कंप्यूटर्स ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ आपके कोई बिजनेस या कुछ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हेल्पफुल रहेगा। आप इन पे गेम्स भी खेल सकते हो, आप कुछ वीडियोस भी वॉच कर सकते हो, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो। मतलब एक कंप्यूटर में इतने सारे फीचर्स होते हैं कि आप आपके लगभग सारी फीचर्स जो भी आपको चाहिए है वो सारी फैसिलिटीज़ को ये फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पर्पस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि कंप्यूटर्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 4 कैटेगरीज में। किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन साइज एंड पर्पस। तो कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा अब हम देखते हैं। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो सबसे पहली कैटेगरी है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरी कैटेगरी है लैपटॉप्स, तीसरी कैटेगरी है हैंड हेल्ड डिवाइसेस, और चौथी कैटेगरी है टैबलेट्स। तो ये 4 अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं जो कि आज के समय में यूज़ होते हैं। और यही ये हमारा सेशन हमको सिखाने वाला है, यही ये सेशन हमको बताने वाला है कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें कुछ नई नहीं है ना। इसमें कुछ ऐसा हम बहुत ज़्यादा इतनी नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं कि जिसके बारे में आपको ज़रा भी जानकारी नहीं होगी, है ना। तो आप लोग इनको एक बार इन पीडीएफ्स को पढ़ोगे तो आई थिंक कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि ये चैप्टर या ये सेशन किन चीज़ों से हमको समझाने वाला है, इन किन चीज़ों से ये डील कर रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इन्होंने अब उन चारों टाइप्स को जो ऊपर लिखे थे ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड और टैबलेट कंप्यूटर्स, इन चारों को यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करके बताया कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर व्हाट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, प्रिंटर, है ना। मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, ऑप्शनली प्रिंटर होगा। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो एक कंप्यूटर बनाया जाता है, या इन सब पार्ट्स को कनेक्ट करके जो एक कंप्यूटर बनता है, उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, वो कंप्यूटर कहलाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका एक डिसएडवांटेज हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये पोर्टेबल नहीं होते हैं। मतलब आप इनको बार बार इनकी जगह नहीं चेंज कर सकते, है ना। मतलब कर सकते हैं बट इट्स नॉट दैट इजी कि आप लोग इसको बहुत इजीली रोज़ कभी इधर रख लिया, कभी दूसरे कॉर्नर पे रख लिया घर के, कभी टेबल पे रख लिया, कभी नीचे रख लिया। सो दिस इज़ नॉट द केस विद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दीज आर नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, इनको हम जहाँ पर भी एक बार प्लेस कर देते हैं, जनरली हम उनकी प्लेसेस को शिफ्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, अब कौन कौन से, अब देखो इसमें जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं इनको इजीली रिप्लेस या अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे हम लैब में देखते हैं, कुछ माउस अगर फंक्शनल नहीं है तो हम क्या करते हैं, वी जनरली चेंज इट। if there are some different parts that are not working, we can what we can do, we can simply change that particular part, or we can replace it with the new one, or we can upgrade it to the new or new updated technology if we have got through। तो हम वो नई टेक्नोलॉजी की चीज़ों को भी उसमें इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये कॉस्टिंग इनकी थोड़ी कम होती है, इन एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होता है, इन एक्सपेंसिव होता है। मेमोरी इनमें ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क एक बड़ी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क होती है, और माउस ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए,
प्रिंटर्स कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड्स कनेक्ट करने के लिए, स्कैनर्स कनेक्ट करने के लिए जो सीपीयू के पीछे के जो पोर्ट्स होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में देखे थे, वो पोर्ट्स यहाँ पर कैसे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा पोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मॉनिटर का साइज़ होता है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मॉनिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। ऑलराइट, तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बारे में बताई। क्या कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का यूज़ करके बनते हैं। ये आप इनके साथ क्या कर सकते हो, ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, इनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस नहीं कर सकते हैं। इनको इजीली शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह इतना इजी गोइंग नहीं होता है। बट एक एडवांटेज क्या है इसके साथ कि आप लोग कुछ पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो। कोई नया पार्ट अगर आया है, न्यू टेक्नोलॉजी का पार्ट आया है, तो उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट जो आपको इस डेस्कटॉप कंप्यूटर में देखने को मिलता है वो क्या होता है कि यहाँ पर पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पोर्ट्स मतलब different sockets which are given behind the CPU using which you can connect different types of devices to your computers। ये थोड़े ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पर आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना बड़ा मॉनिटर परचेज कर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पर इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में इन्होंने यहाँ पर आपको बताए हैं। अगला देखते हैं, अगला है लैपटॉप। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी नई चीज़ें नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये क्या है। तो आप लोग अगर ऐसा बोलें कि समझ नहीं आया तो ये कोई पॉइंट नहीं होगा, है ना। आप लोगों को इनको पढ़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, उन्हीं चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इनको आप एक बार ज़रूर से इस क्लास के बाद भी पढ़ें। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आप इसको एक बार बस रीड कर लें। कुछ लर्न तो करना है नहीं, जब टाइम मिला पीडीएफ ओपन कर ली और थोड़ा सा पढ़ लिया, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमको इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना है, इस आईटी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना है, उतना टाइम सफिशिएंट होगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यू वेरी वेल नो। ये लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, साइज़ इनका छोटा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। इनको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हो, ट्रैवलिंग पर्पस पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर्स को नोटबुक्स भी कहा जाता है, ये टर्म आप ध्यान रखना। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये छोटे और पोर्टेबल होते हैं, इनको कहीं भी इजीली कैरी किया जा सकता है। ठीक है, इनको आप कहीं भी रख सकते हैं। इसका नाम कैसे आया, आप इनको अपना लैप जो होता है लैप पे रख सकते हो, ऑन द टॉप ऑफ योर लैप, तो वहाँ से ये नाम अराइज हुआ है लैपटॉप, दैट अ यूज़र कैन प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ देयर लैप्स। तो वहाँ अपने वो लैप पे रख सकता है, मतलब ये लैपटॉप है, मतलब कि बहुत पोर्टेबल हैं, बहुत ईजीली ये कैरिंग डिवाइसेस हैं जिनको ईजिली आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा एडवांटेज लैपटॉप के साथ ये है कि अगर आपके घर लाइट नहीं है या लाइट चली गई है, तो लाइट जाने के बाद भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप कंप्यूटर्स वर्क कर सकते हैं। इनमें बैटरीज होती हैं, दे जनरली ऑपरेट ऑन बैटरीज एज वेल एज विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई, दोनों तरीके से ये वर्क करते हैं। बट इवेंचुअली अगर लाइट चली जाती है तो भी लैपटॉप्स को एकदम से ड्रॉप नहीं होता है, वो बैटरी पे शिफ्ट होकर आपका काम आपको करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करते हैं सिर्फ, है ना। तो वहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि लाइट जाने पर हमारा कंप्यूटर बंद हो सकता है। बट अगर आप लोगों ने वहाँ भी यूपीएस या कुछ प्लेस कर रखा है तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़े समय के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करने की फैसिलिटी मिल सकती है, अगर यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को आप आपके कंप्यूटर्स पे कनेक्ट कर देते हो तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर लैपटॉप्स का बेनिफिट स्मॉल है, पोर्टेबल है, इजीली कहीं भी कैरी किया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जितने बड़े नहीं होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं, ये बैटरीज का भी यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों की बैटरीज चार्ज्ड हैं और अगर आपकी लाइट घर पे लाइट चली गई है तो ये बैटरीज पे वर्क कर कर आपको आपका काम करने की पूरी तरह से ये फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लैपटॉप कंप्यूटर्स कंज्यूम मोर पावर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद अ सिमिलर हार्डवेयर सेटअप। अब यार देखो यहाँ पर क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ क्या है, बैटरीज पे वर्क कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं,
तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करता है लैपटॉप कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, है ना। बैटरीज पे वर्क करने के कारण थोड़ा सा ये एक डिसएडवांटेज होता है, पर कोई ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। एक बार बैटरी चार्ज करो तो 2 to 2.5 hours कंप्लीटली एक लैपटॉप वर्क कर सकता है। एंड आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडेज टाइम कि 2 या 2.5 घंटे भी अगर लाइट नहीं है तो आप लोग आपका काम बिंदास कर सकते हैं, कोई भी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तीसरा टाइप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। अब लैपटॉप था तो लैप के टॉप पर रख पा रहे थे, अब क्या है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं। अब हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं तो क्या कर सकते हो आप, इनको हाथ में होल्ड कर सकते हो। ऐसे जो डिवाइसेस होंगे उनको बोलेंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं ये आप इनको थोड़ा सा रीड करिए। हैंडल कंप्यूटर्स आर डिवाइसेस यूज फॉर स्पेसिफिक एवरीडे टास्क सच एज मैनेजिंग पर्सनल डेटा, है ना। मोबाइल्स की बात कर रहे हैं हम, स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आएंगे। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि हैंड हेल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और जिनका यूज़ करके आप बहुत सारे आपके काम जो हैं वो ऑन द गो कर सकते हो। जैसे कि मेल्स सेंड करना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, मेल्स रीड करना, इंटरनेट का यूज़ करना, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कोई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना। तो ये सारी चीज़ें ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस आपको करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस कैसे होते हैं, यू कैन होल्ड दैम इन योर हैंड्स, इसलिए इनका नाम है हैंड हेल्ड डिवाइसेस, है ना। अब लैपटॉप तो भी इतना बड़ा था, पर हैंड हेल्ड डिवाइसेस तो क्या होंगे, छोटे होंगे। यहाँ पर इनका साइज़ और ज़्यादा छोटा होता है। आप लोगों को इनको कैरी करने के लिए इवन यू डोंट नीड टू हैव अ बैग, यू कैन डायरेक्टली कैरी इट इन योर पॉकेट्स, आप लोग इनको पॉकेट्स में भी रख सकते हो, है ना। तो ये जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हैंड हेल्ड डिवाइसेस की बात करें तो क्या हो सकते हैं, कैमरास, डिजिटल कैमरास, यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिजिटल कैमरास भी क्या होंगे, वो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक है ना वो भी, तो जब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको आप हाथ में होल्ड कर सकते हो वो सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर्स भी क्या होता है, ये कंप्यूटर्स जैसे ही होते हैं। टैबलेट आप लोगों ने सुना होगा, है ना। टैबलेट्स में क्या होता है, एक जनरली पेन टाइप का एक आप लोगों को वो एक टूल देते हैं, एक डिवाइस देते हैं, जिसका यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, उन स्क्रीन्स पर वर्क कर सकते हो, है ना। उसको स्टाइलस बोलते हैं, वो जो चीज़ होती है पेन जैसी उसको क्या बोलते हैं, स्टाइलस। एक मिनट, STYLUS, उसको स्टाइलस कहा जाता है। स्टाइलस मतलब वो छोटा सा डिवाइस, पिन पॉइंटिंग डिवाइस, जिसका यूज़ करके आप आपके टैबलेट कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसा आपका माउस फंक्शन करता है वैसा ये टैबलेट फंक्शन करता है, बस माउस ना देते हुए आप लोगों को। तो चूँकि आप लोगों को बहुत एक कॉम्पैक्ट चीज़ प्रोवाइड करनी थी तो इन्होंने एक आपको पिन पॉइंटिंग डिवाइस दे दिया, आपको कोई माउस नहीं दिया। तो ये पिन पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करके भी आप लोग कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, कर्सर जैसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब टैबलेट कंप्यूटर्स में जब आपको ये पिन पॉइंटिंग डिवाइस दे दिया कुछ चीज़ को लिखने के लिए, तो आप लोगों को अलग से ना तो माउस की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको अलग से कोई कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जो स्टाइलस दिया है वो पिन पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब माउस का काम तो हो गया। और टैबलेट्स में कीबोर्ड की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि आपको स्क्रीन पे ये कीबोर्ड बना हुआ आ जाता है, जो बटन्स प्रेस करोगे उन बटन्स को प्रेस करके आप लोग कीबोर्ड पे किन्हीं भी चीज़ों को टाइप कर सकते हो। अगला दिया हुआ है रोल ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कंप्यूटर में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में इन्होंने समझाया हुआ है। अब मेमोरी देखिए कंप्यूटर में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर कंप्यूटर में कोई टास्क कर रहे हैं, आपको उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए उसको कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो एक जगह है उसको बोलते हैं मेमोरी। अब इस मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की, उसको बोलते हैं बिट। ठीक, वो होती है बिट। और ऐसी 8 बिट्स से मिलकर बनता है एक बाइट। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है बिट, उसमें 0 और 1 होता है, और जो उससे बड़ी 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन से बनती है एक बाइट, और 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक निबल। अगर यहाँ पर नीचे कहीं बताया होगा तो उसको देखेंगे, नहीं तो फिर स्किप करेंगे।
देखिए अब इन्होंने बिट को समझाया है, बिट क्या होता है, तो बिट इज़ व्हाट, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर हैंडल्स। अ सिंगल बिट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज, 0 और 1। अब देखो बिट क्या कर सकती है, सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड कर सकती है, या तो 0 या तो 1। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है 0 और 1। तो यहाँ पर कंप्यूटर हमेशा बिट के अंदर 0 या 1 को ही स्टोर करता है। अब देखो कंप्यूटर में आप कुछ भी इनपुट दोगे ना, तो वो इनपुट जनरली 0 और 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। जैसे मैं हाई लिख रहा हूँ और कंप्यूटर नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट हाई, तो वहाँ पर दैट हाई विल बी कन्वर्टेड इनटू सम कोड्स ऑफ 0 1 1 0 1 0 0 1 like this, and that computer will understand that the particular user has written what high। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें 1 0 0 1 इनके फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट जनरली अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज ही वो समझता है। अब जब वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है तो उसके अंदर डेटा भी हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ऑलराइट, अ सिंगल बिट कन्वेज लिटिल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो प्लेस बनाई गई है उसको बोला गया है बिट। ठीक, और बहुत सारी बिट्स को कंबाइन करके आप बहुत बड़ा डेटा भी स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिट ही स्टोर कर सकते हो। आप कितना बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। 8 बिट्स को जोड़ दो तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक बाइट हो गया। अब एक बाइट में आप लोगों के पास 8 बिट्स हैं, तो इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया। जितना एक बिट में डेटा आता था उसका 8 गुना डेटा इस बाइट के अंदर आ सकता है। ऑलराइट, अब क्या हुआ, क्या बाइट सफिशिएंट था डेटा को स्टोर करने के लिए? नहीं। तो क्या हुआ, एक नई टर्म आई जो थी किलोबाइट। किलोबाइट मतलब क्या, 1024 बाइट्स से मिलकर बना 1 किलोबाइट, है ना। अब क्या हुआ, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोर की जा सकती थी, जैसे कि ईमेल मैसेज, टेक्स्ट फाइल, ये सारी फाइल्स जो होती हैं ये कहीं ना कहीं केबीज़ में होती हैं। तो 1 KB, 2 KB, 10 KB, 11 KB, ऐसा करके अलग अलग केबीज़ में ये डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब इससे भी बड़ा डेटा, तो इससे भी बड़ा डेटा है तो उसको कहाँ स्टोर करोगे, केबी में तो स्टोर होगा नहीं, तो उसको स्टोर कहाँ करोगे? तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं मेगाबाइट। अब मेगाबाइट में क्या हो सकता है, आप लोगों के पास जो एक टेक्स्ट फाइल है, ऐसी हज़ारों टेक्स्ट फाइल्स को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB का साइज़ कितना होगा, 1024 KB के बराबर होगा 1 मेगाबाइट का साइज़। अब आपका डेटा अगर मेगाबाइट्स में भी स्टोर नहीं हो पा रहा तो फिर आपको और बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ी। तो मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट जिसको बोलते हैं जीबी, ये जो गीगाबाइट होता है वो किससे मिलकर बना, वो बना 1024 मेगाबाइट से मिलकर, है ना। तो एक गीगाबाइट में बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और बहुत सारा डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। काफ़ी बड़ा एक वीडियो भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ऑडियो फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी 10-12 घंटे की ऑडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती हैं, 3-4 घंटे का वीडियो स्टोर किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट वीडियो, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग डेटा को इस पर्टिकुलर यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। बट अगर आपको ये भी कम पड़ रहा है, अगर गीगाबाइट्स में भी आपका डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे, यू ऑल्सो हैव वॉट, यू ऑल्सो हैव टेराबाइट। टेराबाइट किससे मिलके बना, तो टेराबाइट बना 1024 GB से, गीगाबाइट से मिलकर बना। ठीक है, तो 1 TB इज़ वॉट, 1024 GB। ये तो बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, बहुत बड़ा। इसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट की लगभग सारी चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है, इतना बड़ा होता है 1 TB। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ मेमोरी यूनिट्स को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर कर हमको बता दिया कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं। अब देखिए, हमने देख लिया अभी तक क्या क्या चीज़ें हमने देख ली, थोड़ा सा एक बार हम उनको समझते हैं। हमने सबसे पहले क्लास स्टार्ट करी कैसे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करी। कैसे समझा कि भैया टेलीविज़न लेने जाते हैं तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, कौन सा खरीदना है, क्या खरीदना है, सोचना पड़ता है। सिमिलरली कंप्यूटर के साथ भी होता है, कौन सा कंप्यूटर खरीदना है, क्या फंक्शनैलिटी उसमें होगी, क्या क्या फीचर्स आप चाहते हैं, क्या आपका यूजेज है, बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यू वांट टू परचेज। अब चलो कंप्यूटर ले लिया,
या टीवी ले ली, टीवी ले ली तो कौन से चैनल देखना है वो अब डिपेंड करता है। सिमिलरली कंप्यूटर आपने ले लिया तो क्या काम करना है वो अब डिपेंड करेगा उस पर कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ना। तो सिर्फ कंप्यूटर ले लेने से काम नहीं होना है, आप लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने देखा कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो कंप्यूटर्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आप घर पे रखते हैं, जिसको ज़्यादा इधर उधर ले जाया नहीं जा सकता, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, जिसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है। अगला देखा लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स का क्या बेनिफिट, इजी टू कैरी, ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कैरी कर सकते हैं, साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लैप के टॉप पे रख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम लैपटॉप है। और सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज क्या, कि लाइट भी चली गई, पावर फेलियर भी हो गया, तो भी आप लैपटॉप्स का यूज़ कर सकते हो। थर्ड क्या देखा, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स और डिजिटल कैमरास, ये क्या होते हैं, ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके बहुत सारे रिक्वायर्ड टास्क्स की फुलफिलमेंट करते हैं और बहुत काफ़ी छोटे होते हैं, हैंड्स में है होल्ड किया जा सकता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ऑलराइट, अगला क्या देखा था, अगला देखा था टैबलेट्स। टैबलेट्स में क्या होता है, पिन पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं स्टाइलस, जिसका यूज़ करके आप लोग स्क्रीन पे ही लिख सकते हैं। आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं तो ना तो माउस की ज़रूरत पड़ रही है ना तो कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये इजी टू कैरी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट्स, मेमोरी में कौन कौन सी यूनिट्स होती है, तो बिट, बाइट, और फिर उसके बाद हमने देखा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस जो होती है, ये कंप्यूटर परफॉर्मेंस किन किन चीज़ों पर बेस्ड होती है। ऑलराइट, कि आपका ओवरऑल कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर बेस्ड होता है, क्या क्या चीज़ों से आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है जिसका यूज़ करके आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस पे को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है सीपीयू की स्पीड। अब सीपीयू की स्पीड क्या होती है, अब देखो आपके कंप्यूटर में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आपका सीपीयू, जैसे कि मैंने एक फ़ाइल ओपन करी, अब मैंने फ़ाइल ओपन कर ली और मुझे वेट करना पड़ रहा है 10 सेकंड, उसके बाद वो फ़ाइल ओपन कर रही है, तो मेरे सीपीयू की स्पीड कैसी हुई, कम। मैंने फ़ाइल पे क्लिक किया, मेरी फ़ाइल बिल्कुल इंस्टेंटली ओपन हो गई, तो क्या हुआ, स्पीड ज़्यादा है। अब ये क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया है ना, क्या हार्ड डिस्क कैसी है, एसएसडी है कि एचएचडी है, रैम कैसी है, कितनी कैपेसिटी की है, रोम कैसी है, कितने कैपेसिटी की है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे कि सीपीयू स्पीड डिपेंडेंट होती है। और किसी डेटा का अलग अलग पार्ट से अलग अलग कंप्यूटर्स में इंटरनली मूव करना भी सीपीयू स्पीड को ही दर्शाता है। जैसे कि कंप्यूटर चालू होता है तो क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है स्पीड में, रैम जो होती है वो फास्ट होती है। तो डेटा क्या होता है सीपीयू के अंदर, हार्ड डिस्क से जाता है कहाँ पर, रैम के पास। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को चालू करना है, कंप्यूटर को स्पीडीली चालू करना है, जल्दी चालू करना है, तो रैम के पास डेटा चले जाता है और रैम से डेटा बूट होता है कंप्यूटर, और जल्दी से बूट होने की कोशिश करता है। अगेन कंप्यूटर चालू हो गया, बूटिंग हो गई, अब तो ज़रूरत है नहीं उस डेटा की रैम के अंदर, तो वो डेटा रैम से हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से सीपीयू स्पीड जो है ये एक बहुत मेन फैक्टर हो सकता है जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है या कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है ना। अगला जो है हार्ड डिस्क फैक्टर्स। अब देखिए हार्ड डिस्क भी जो है ना अलग अलग साइजेस में आती हैं, 1 TB, 2 TB, 256 GB, 500 GB, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग कैपेसिटी इनकी होती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें समझने जैसी क्या होती है कि ये जो होता है ना, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं हार्ड डिस्क और ये सब, इनमें क्या होता है, इनकी खुद की भी कुछ कॉपिंग की स्पीड होती है। ऑलराइट, अलग अलग हार्ड डिस्क के डेटा में, अलग अलग हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को कॉपी करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को कहीं और भेजने के लिए उसकी स्पीड होती है। और हर एक हार्ड डिस्क की जो डेटा को एक्सेस करने की या डेटा को रिट्रीव करने की जो
क्या कह सकते हो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है ना, कितनी देर में वो डेटा लोड करेगा, कितनी देर में वो डेटा कॉपी करेगा। तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण, हार्ड डिस्क के कारण, जिससे कि आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है ना। जैसे कि हार्ड डिस्क अच्छी है, ज़्यादा कैपेसिटी की है, उसकी डेटा कॉपी करने की, डेटा रिट्रीव करने की स्पीड ज़्यादा है, कम टाइम लेती है वो अगर डेटा को लोड करने, प्रोग्राम को लोड करने में, तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अल्टीमेटली बढ़ी जाएगी ना। सीधी सी बात है। अगर आपको कंप्यूटर में डेटा लोड होने में, प्रोग्राम लोड होने में बहुत समय लेता है, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी हार्ड डिस्क का डेटा एक्सेस करने की या डेटा को प्रोवाइड करने की जो स्पीड है वो कम है। कम है तो क्या होगा, परफॉर्मेंस तो सीधी सी बात है डिग्रेड होना ही होना है। तीसरा फैक्टर जो है, जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस को क्या कहना चाहिए कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए, वो है रैम। ठीक है। रैम क्या है, रैम के अंदर क्या होता है, रैम में जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि रैम बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ये बहुत स्पीडीली डेटा को इधर से उधर पहुंचा सकती है। ठीक है। तो रैम की स्पीड, रैम की कैपेसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है किसी भी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस। आज के समय में तो आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल्स भी 8 GB, 10 GB, 12 GB के मोबाइल्स आ रहे हैं। अब सोचिए आप इतनी ज़्यादा गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज एक रैम के अंदर की जा सकती है, तो वो कितना सारा डेटा रैम स्टोर कर रही है। आज अगर मैं मोबाइल को चालू करूं और उसको 10 दिन बंद ना करूं, और जब देखूं कि मैंने अगर कल का कोई एप्लीकेशन खुला छोड़ दिया होगा, तो 2 दिन बाद भी मुझे वो एप्लीकेशन वहीं से ओपन होता हुआ दिखता है जहां मैंने उसको छोड़ा था। वो ज़ीरो नहीं हो जाता, मतलब वो रैम में तब तक भी स्टोर करके रखता है, इतना सारा डेटा उसके पास रहता है, और फिर भी रैम फुल नहीं होती, परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट नहीं करती, है ना। तो कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी रैम होगी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की रैम होगी, उतना ज़्यादा आप डेटा उसमें स्टोर कर पाओगे। और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा स्पीड की रैम होगी, जितना ज़्यादा स्पीडीली वो डेटा लोड और डेटा अनलोड कर रही है, उसके ऊपर भी आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिपेंड करेगा, है ना। कंप्यूटर स्लो डाउन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रैम के कारण, या तो फिर हार्ड डिस्क की स्पीड नहीं है उस कारण, या तो सीपीयू प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं उसके कारण। अब इन तीन में से कौन सा फैक्टर है, तो आप फिर इसके लिए और अलग अलग टूल्स का यूज़ करके पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ के कारण आपका कंप्यूटर स्लो डाउन कर रहा है। अगली चीज़ जो यहाँ पर बताई हुई है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स। अब कौन कौन से प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इन्होंने नाम बताए हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये आपको समझाने जैसे होंगे। पहला दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम्स। क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोग्राम, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जितनी चीज़ ये समझाई हुई है, ये सारी की सारी चीज़ एमएस वर्ड के बारे में बताई गई है, एमएस वर्ड क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बताई गई है। अगला सॉफ्टवेयर जो बताया इन्होंने वो है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन कौन सा, जिसके अंदर आप स्लाइड्स बनाते हो, पावर पॉइंट जो है ना, वो आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये जो है इतना कंटेंट ये आपके पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तीसरा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट मतलब एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। और अगला है डेटाबेस, जो कि होता है एम एस एक्सेस। ये शायद हमने आज तक यूज़ नहीं किया है, पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कंप्यूटर्स में डेटाबेस क्रिएट किए जा सकते हैं। डेटाबेस क्या होते हैं, कभी इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ ग्राफिक्स प्रोग्राम भी होते हैं, पेंट जैसे, फोटोशॉप जैसे, जिनका यूज़ करके आप आपकी फ़ोटोज़ को और अच्छा बना सकते हो या ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे के सारे प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स हुए जिनका यूज़ करके आप आपकी प्रोडक्टिविटी सुधार सकते हो, है ना। मतलब आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और उस काम को और अच्छे से करना चाहते हो, लेटर टाइप करना है, हाथ से लिखने की बजाय एमएस वर्ड पे टाइप कर दो, सीधी सी बात, फास्ट काम होगा, कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा, एरर्स होंगी तो भी पता चल जाएंगी। तो इस तरीके से ये इजी होगा आपके लिए। प्रेजेंटेशंस क्रिएट करनी है तो एम एस पावर पॉइंट इज़ द बेस्ट, उससे अच्छा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। कुछ कैलकुलेशन करना है तो एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल से अच्छा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे दिए हुए हैं कुछ कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। अब कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स मतलब क्या, ईमेल। अब ईमेल क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। एक मैसेज को अगर आपको एक्सचेंज करना है कि दूसरे कंप्यूटर्स को भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ईमेल करना पड़ेगा,
बी लाइक वो कोई भी कंट्री में हो, मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में हो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। अगर उसके पास ईमेल आईडी है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो बस हो गया काम, इजीली आप उसको कोई भी चीज़ पहुंचा सकते हो। चैट, आज के समय में चैटिंग बहुत कॉमन हो गई है। जैसे कि जीमेल पे होती है चैटिंग, हैंगआउट्स पे होती है चैटिंग, व्हाट्सएप पे होती है चैटिंग। तो ये सारे कुछ चैटिंग प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए इस चैट प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर हमको इस पर्टिकुलर सेशन में बताई गई थी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग उस पीडीएफ को प्लीज़ गो थ्रू करना, अच्छे से समझना। आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डोंट फेयर कि कोई छोटा डाउट है, कोई बड़ा डाउट है, आप बिल्कुल पूछिए। आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं समझ में आएगा। द वे दैट वी आर यूजिंग टू टीच इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे दैट वी कैन यूज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ऑलराइट, अब ये बेस्ट पॉसिबल वे है तो आप लोगों के लिए बेस्ट कब होगा? जब आप लोग इसको समझोगे, डाउट्स पूछोगे, तब होगा, है ना। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप लोग डाउट्स पूछो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछो, क्या नहीं समझ में आया मुझसे पूछो, है ना। अपने पास व्हाट्सएप है, अपने पास यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन है, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, मैं इसीलिए लिख देता हूँ प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो कि भैया वीडियो है, आप लोग देख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट इन दिस, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए, और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू क्लास, इट्स ऑलरेडी 40 minutes, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।